Good morning, student. Today we will discuss the new topic, that is myocardial infarction. So, firstly, I will start from the introduction. A heart attack or myocardial infarction is permanent damage to the heart muscles. Myo means muscles and cardial refers to the heart, and infarction means death of the tissue due to the lack of blood supply. So first, there will be two word. First one is myo. So myo, that denote muscles, and cardial means muscles of the heart. So myocardial means muscles of the heart, and the infraction, that means the death of the cells. So here, death of the myocardial cells due to lack of the blood supply to the myocardial layer. So another thing is a heart attack. It is a life-threatening condition that occurs when blood flow to the heart muscle is abruptly cut off, causing tissues damage. This is usually the result of a blockage in one or more of the coronary artery. One another name of the myocardial infarction, that is heart attack, and it is mainly due to blockage of the coronary artery. So this is about the introduction. Next, I will come to the definition. So first definition is a myocardial infarction, also known as a heart attack, occurs when blood flow decrease or stop to a part of the heart, causing damage to the heart muscles. The most common symptom is chest pain, discomfort which may travel into the shoulder, arm, back, neck or jaw. Another definition, myocardial infarction, that is heart attack, it is the irreversible death, that is necrosis of heart muscle secondary to the prolonged lack of oxygen supply, that is called ischemia. Third definition, a heart attack occurs which one of the heart's coronary artery is blocked suddenly or has extremely slow blood flow. A heart attack also is called a myocardial infarction. So overall the meaning of myocardial infarction, that is कि जो ब्लड फ्लो है, ब्लड की सप्लाई है, जो मायोकार्डियल लेयर, हार्ट में 3 लेयर्स होती हैं. सो मिडिल लेयर इज मायोकार्डियल लेयर. तो जो मिडिल की लेयर्स होती है वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है. ब्लड फ्लो नहीं होने की वजह से वहाँ की जो सेल्स हैं उनकी डेथ होने लगती है, नेक्रोसिस होने लगता है, दैट इज कॉल्ड इस्चीमिया. सो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मायोकार्डियल लेयर्स है उसका क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है. वहाँ के जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं. दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. Next is causes and risk factor. There are various type of causes and risk factor. First one is bad cholesterol. I have already told you in earlier classes that the bad cholesterol means LDL, low density lipoprotein, and one another cholesterol, that is called good cholesterol, high density lipoprotein. So here, in case of any heart disease person having high level of bad cholesterol, that means high level of LDL. So if bad cholesterol level is increased, so there are higher chance for getting myocardial infarction or higher chance of getting any other type of heart disease or heart infections. Next one is saturated fat. Saturated fat, it also contribute to the buildup of plaque inside the coronary artery, and it is mostly found in the meat and dairy products. जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज है उनके अंदर में फैट का डिपोजिशन होने को प्रमोट करते हैं. मेनली जो सैचुरेटेड फैट्स हैं मैक्सिमम मीट्स में मिलते हैं, हमको डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, बटर, चीज़, है ना, बीफ मिलते हैं. तो ये जो है सैचुरेटेड जो फैट है वो क्या करता है, एथ्रोस्क्लेरोसिस कॉज करता है. एथ्रोस्क्लेरोसिस मीन्स प्लेक फॉर्मेशन इनसाइड द आर्ट्रियल वॉल, यानी कि आर्टरी के अंदर में फैट का डिपोजिशन हो जाता है. सो दिस इज अबाउट द saturated fat. Next one is trans fat. Another type of fat that contribute to the clogged artery is trans fat, and it is hydrogenated fat. It is usually artificially produced or can be found in the variety of the processed food. Trans fat is typically listed on food label as
हाइड्रोजनेटेड ऑयल और पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल। जो ट्रांस फैट है ये भी एक टाइप का फैट है जो कि क्या करता है, हमारी कोरोनरी आर्टरी को क्लॉग्ड करता है, यानी कि ब्लॉक करता है। इसके थ्रू भी क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है। एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज है उनके अंदर में फैट का डिपोजिशन हो रहा है। मेनली जो ट्रांस फैट है किस में पाए जाते हैं, मेनली ये पाए जाते हैं जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है प्रोसेस्ड फूड, सारी चीज़ें हमको बनी बनाई हुई पैकेट के अंदर मिलती हैं और हम उसको यूज़ करते हैं। तो उसमें जो फैट होता है दैट इज़ ट्रांस फैट। तो ये जो 3 टाइप्स के फैट होते हैं, फर्स्ट वन इज़ LDL मीन्स बैड कोलेस्ट्रॉल, सेकेंड वन इज़ सैचुरेटेड फैट और थर्ड वन इज़ ट्रांस फैट। तो ये जो तीनों फैट है ओवरऑल क्या कॉज करते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स plaque formation or collection inside the coronary artery which further block the coronary artery that leads to the heart disease. Next is high blood pressure. I have already told you about the high blood pressure, that is hypertension, and hypertension cause डैमेज टू द आर्टेरियल वॉल बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड फ्लो। हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो है बहुत तेज़ी से होता है, इसकी वजह से क्या होती है, आर्टरीज रप्चर हो जाती है, डैमेज हो जाती है और धीरे धीरे फिर प्लेक बिल्डअप होने लगता है। नेक्स्ट वन इज़ हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल ओवरऑल हाई कोलेस्ट्रॉल लाइक एलडीएल का लेवल अगर बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल। ट्राइग्लिसराइड लेवल भी सेम एक फैट का ये कंपोजिशन है, अगर इसका लेवल भी बॉडी में बढ़ता है दैट ऑल्सो कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट वन इज स्मोकिंग एंड टोबैको बोथ प्रोड्यूस इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। इट में ऑल्सो लीड टू द अदर कार्डियोवास्कुलर कंडीशन एंड डिसीज। स्मोकिंग से पर्सन को कैसे रिस्क है कि पर्सन को हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट डिसीज हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। सो द रीज़न इज़ दैट स्मोकिंग क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को इंक्रीज करता है। ट्राइग्लिसराइड अभी मैंने लास्ट वाले स्लाइड में बताया कि ट्राइग्लिसराइड भी एक तरह से क्या है, फैट है। तो वो स्मोकिंग या टोबैको जो भी हम करते हैं तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी में हमारी आर्टरीज में ब्लड के कोगुलेशन को ब्लड के फ्लो को रोकता है। कैसे रोकता है, ट्राइग्लिसराइड यानी कि फैट के जो लेवल्स हैं उसको इंक्रीज करता है। जैसे जैसे हमारी बॉडी में फैट का लेवल इंक्रीज होगा हमारी आर्टरीज क्या होने लगेंगी, ब्लॉक्ड होने लगेंगी, क्लॉग्ड होने लगेंगी। नेक्स्ट वन इज डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड शुगर। सेम थिंग, अगर बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो ये क्या करता है, हमारी आर्टरीज को रप्चर करता है और साथ ही साथ आर्टरीज को डैमेज भी करता है, सेम एज हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस कैन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क फॉर इन हार्ट अटैक। स्ट्रेस के टाइम पे जैसे कभी कभी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होने लगता है, रेगुलेट प्रॉपर नहीं हो पाता, या फिर हम बहुत ज़्यादा इमोशनली लो फील करते हैं, हम बहुत डाउन फील करते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो आर्टरीज है उनसे ब्लड का फ्लो बहुत ही लो होने लगता है, हमारा ब्लड प्रेशर लो होने लगता है। तो ब्लड प्रेशर लो हो रहा है मतलब आर्टरीज के थ्रू ब्लड का फ्लो कम हो रहा है। तो कंटिन्यूसली अगर हम लो में हैं, लो फील कर रहे हैं, अगर हम स्ट्रेस में हैं तो क्या होगा कि हमारी आर्टरी से जो ब्लड का फ्लो है वो धीरे होगा। धीरे होने की वजह से क्या है, सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड और ऑक्सीजन एंड ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स तीनों जो चीज़ें हैं वो हमारे हार्ट को सप्लाई नहीं होंगी, मायोकार्डियम में सप्लाई नहीं होंगी, एंड दैट फर्दर लीड्स टू नेक्रोसिस और इस्चीमिया। नेक्स्ट वन इज इलिक्ट ड्रग यूज। इलिक्ट मीन्स like cocaine, amphetamine, that all cause spasm or abnormal contraction in the coronary artery and rupture the coronary arteries, which further leads to the ischemia in the myocardium and result in heart attack or any type of heart disease. Next one is history of preeclampsia in case of pregnancy, especially in case of pregnancy. If mother having preeclampsia, that means high blood pressure during the time of pregnancy, can also increase the chance of having any type of heart disease. Next is age. Men at the age of 45 or older and women at the age of 55 or older are more likely to have a heart attack than are younger men and women. मैन और वुमेन दोनों में क्या है, एक एज के बाद
वो हायर रिस्क में चले जाते हैं। हायर रिस्क में क्यों चले जाते हैं? ऑलरेडी जो हमारी आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती है, धीरे धीरे जो उनकी टोनिसिटी होता है, उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट इज क्या होने लगता है? दैट बिकम्स लो, मतलब वो धीरे धीरे लो होने लगता है। नेक्स्ट वन इज ओबेसिटी। इट इज़ एसोसिएटेड विद द हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़। सो अगर हम यहाँ पे ओबेसिटी को देखते हैं एज ए रिस्क फैक्टर, तो डायरेक्टली ओबेसिटी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को कॉज नहीं कर रहा है। ओबेसिटी से पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है पेशेंट का, साथ ही साथ उसको हाई ट्राइग्लिसराइड मतलब कि जो ट्राइग्लिसराइड के लेवल है वो भी बढ़े हुए हैं। पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम भी है और पेशेंट का शुगर लेवल भी बढ़ा है। तो ओबेसिटी क्या है? ये चारों चीज़ों के साथ जब कंबाइन हो जाती है, दैट फर्दर लीड्स टू चांस ऑफ हैविंग रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। नेक्स्ट अनदर cause is metabolic syndrome. Metabolic syndrome, this occurs when you have already ओबेसिटी। तो पहले से ही पर्सन को ओबेसिटी है। ओबेसिटी अभी जैसे मैंने बताया कि ओबेसिटी होने की वजह से और भी अदर प्रॉब्लम्स होती है पर्सन को। क्या क्या चीज़ें हो सकती है? डायबिटीज़ हो सकता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल उसका हाई हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या कॉज कर सकती हैं? मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड एनी टाइप ऑफ हार्ट डिसीज। फैमिली हिस्ट्री, ऑलरेडी पर्सन हैविंग एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक और एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज। Lack of physical activity leads to obesity. Low immune system, like person having HIV or any type of autoimmune disease or any type of chronic illness like cancer. So next is pathophysiology. So in pathophysiology, due to all the etiological factor, all type of risk factor like high blood cholesterol, high triglyceride level, high blood pressure, diabetes, low physical activity, high stress, anything which all combinedly cause cholesterol deposition inside the main artery. Main artery means there are two types of artery which mainly supply to the heart. First one is left coronary artery and second one is right coronary artery. So firstly, cholesterol is deposited in the main artery. Main artery means right and left artery. Then this deposit cholesterol ultimately forms a plaque in the wall of artery that is called atherosclerotic plaque. जैसे कि मैंने बताया कि ये जो आर्टरी के इनसाइड अंदर की वॉल में एक तरह का प्लेक फॉर्मेशन होता है, फैट का कलेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक. दिस प्लेक फॉर्मेशन इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड रिक्वायर मेनी ईयर्स टू इस्टेब्लिश. ये एक दिन या 1 मंथ या 1 वीक में नहीं होता है. इस प्लेक को इस्टेब्लिश होने में, कलेक्ट होने में, धीरे धीरे अपना शेप बड़ा करने में, इंक्रीज होने में काफ़ी टाइम लगता है. नेक्स्ट, समटाइम दिस प्लेक में रप्चर और इरोड, इट लीड्स टू एक्टिवेटिंग क्लॉटिंग मैकेनिज्म टू प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड फिब्रिन डिपोजिशन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अकल्सिव थ्रोम्बोसिस इन एन कोरोनरी आर्टरी. कभी कभी क्या होता है, ये जो प्लेग है वो रप्चर हो जाता है. रप्चर होने की वजह से क्या होता है, ये एक क्लॉट की तरह काम करता है और साथ ही साथ क्या होता है, जो आर्टरीज होती है उसके बीच में एक थ्रोम्बस की तरह एक ब्लॉकेज के फॉर्म में ये अराइज होता है. नेक्स्ट, दीज अकल्सिव थ्रोम्बस कंप्लीटली ब्लॉक अ कोरोनरी आर्टरी. नेक्स्ट टाइम क्या होता है, वो जो क्लॉग्ड, वो जो क्लॉट होता है थ्रोम्बस, वो क्या करता है, कंप्लीटली किसी भी एक आर्टरी को, कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है. ब्लॉक करने से क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट हो जाती है. इंटरप्ट द ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ द मायोकार्डियम, मतलब मायोकार्डियम जो लेयर्स है वहाँ पे ब्लड की सप्लाई कम होने लगती है. एंड देयर आर इरिवर्सिबल चेंजेस एंड डेथ ऑफ मायोकार्डियल सेल्स. इसकी वजह से क्या होता है, अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूली है, चल रहा है, कंटिन्यूअस है प्रोसेस, तो ऐसे चेंजेस होते हैं हार्ट में कि वो उस चीज़ों, सारी चीज़ों को हम वापस से रिवर्स नहीं कर सकते. सो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं. एंड डेथ ऑफ द मायोकार्डियल सेल, ऑल्सो कॉल्ड मायोकार्डियल इस्चीमिया. एंड अल्टीमेटली ST सेगमेंट एलिवेशन एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन डेवलप. तो ओवरऑल क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी कि मायोकार्डियल सेल्स के डेथ होने शुरू हो जाते हैं. एंड द ST सेगमेंट एलिवेशन, जो भी हम हार्ट के लिए एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो सबसे मेन है, दैट इज़ ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. उसमें हम हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसका ग्राफ देखते हैं. तो ग्राफ में जो मेन पॉइंट्स होते हैं दैट इज़
PQRST। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं ग्राफ भी दिखाऊंगी। तो ग्राफ में जो S और T का जो पार्ट रहता है वो आपको एक नॉर्मल जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसमें जो आपको S और T के बीच का जो डिस्टेंस दिखेगा उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको थोड़ा ज़्यादा एलिवेटेड दिखाई देगा। तो ये ECG में मेन ये जो चीज़ है हम इसी से पता कर सकते हैं कि पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन या किसी भी तरह का हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ है या नहीं है। एक ये भी हमारे पास टूल्स है। So here the another pathophysiology, so you can use, next one is clinical features. First one is angina. Chest pain or angina is the most important or most key features in the patient having myocardial infarction or myocardial ischemia. Next one is pain or discomfort in the area of the upper body like in arms, left shoulder, back, neck, जॉ एंड स्टमक। अच्छा, लेफ्ट शोल्डर में ही क्यों पेशेंट को पेन होगा? लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल्स है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को सप्लाई करता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो पार्ट है वो हार्ट से जो ब्लड सप्लाई होती है लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू होती है। तो ये रीज़न है कि जो लेफ्ट साइड का शोल्डर्स है, बैक्स है, नेक है, जॉ, ये सारे में आपको पेन फील होगा। नेक्स्ट वन इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑल्सो कॉल्ड डिस्पनिया। Next one is sweating or sometimes cold sweat. Next one is fullness, indigestion and choking feeling may feel like heartburn. Patient having a feeling of heartburn, nausea, vomiting, lightheadedness, dizziness, extreme weakness, anxiety, irregular heartbeats. Women have sometimes other symptoms and some different symptoms as comparison to men. First one is upper back or shoulder pain, jaw pain and pain is spreading to the jaw. jaw में पेन रहेगा, प्रेशर और पेन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, लाइट हेडेकनेस फील होगा पेशेंट को, ठीक है, पेन दैट स्प्रेड टू द आर्म्स, आर्म्स में पेन रहेगा, अनयूजुअल फैटिक फॉर द सेवरल डे। सो दीज आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ द मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन और मायोकार्डियल इस्चीमिया। नेक्स्ट I will come to the investigation. In investigation, first of all, we will take the history of the patient. हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हमको लेना है? सबसे पहले हमको पेशेंट से हिस्ट्री लेना है। तो हिस्ट्री में हमको ये लेना है कि आपको किसी भी तरह की बैड हैबिट है, स्मोकिंग है, टोबैको च्यूइंग है या स्मोकिंग करते हैं। दूसरी चीज़, क्या आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, है ना, तो उनका एक्सरसाइज के बारे में भी पूछना है। तीसरी चीज़ क्या पूछनी है, क्या आपको फैमिली में हिस्ट्री है किसी को हार्ट डिसीज़ का या सेम उसी पर्सन को पहले किसी भी तरह का हार्ट डिसीज़ हो चुका है। नेक्स्ट, क्या उनका कोलेस्ट्रॉल इससे पहले उन्होंने चेक करवाया और क्या उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है। क्या जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इसमें से रिलेटेड पेशेंट को किसी भी तरह की हिस्ट्री है या नहीं है। नेक्स्ट वी विल परफॉर्म द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे फर्स्ट थिंग हमको पेशेंट का ब्लड वाइटल्स चेक करना है। वाइटल्स चेक करने के साथ साथ हमको पेशेंट का वेट चेक करना है। वेट चेक करने से पता चल जाएगा कि पेशेंट ओबेस है या नहीं, बाय लुक भी पता चल जाता है और साथ ही साथ अगर हम पेशेंट का वेट लेते हैं तो उससे भी हमको पता चल जाता है कि पेशेंट ओबेस है। नेक्स्ट थिंग क्या करना है, हमको वाइटल्स लेना है। वाइटल्स लेने से पेशेंट का, अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर हमको बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर पेशेंट हाइपरटेंशन वाला है, पेशेंट को टैकीकार्डिया हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, कोल्ड स्वेट जैसे हमने पढ़ा। साथ ही साथ हम पेशेंट का जो पेन का कंप्लेन है वो भी पूछ सकते हैं कि हाँ आपको कहाँ पे पेन हो रहा है, किस तरीके का पेन है, पेन कहाँ पे किस हिस्से में हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करते हैं। नेक्स्ट कम टू द अनदर इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट वन इज कार्डियक बायोमार्कर। इन कार्डियक बायोमार्कर फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट एंजाइम दैट इज ट्रोपोनिन। जो कार्डियक एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड ट्रोपोनिन। नॉर्मली वो
जो मसल्स है वहाँ पे नहीं पाया जाता है या नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही पर्सन को मायोकार्डियल इस्चीमिया होता है या पर्सन को किसी भी हार्ट से रिलेटेड कोई क्रॉनिक इलनेस या डिसीज होती है तो जो ट्रोपोनिन्स का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो कार्डियक बायोमार्कर्स में हम क्या करते हैं, ट्रोपोनिन का लेवल हम चेक करते हैं कि क्या वो बढ़ा हुआ है या फिर नॉर्मल है। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। पेशेंट का हमको एचबी चेक करना है, आरबीसी चेक करना है, ईएसआर चेक करना है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। नेक्स्ट वन इज लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में हम क्या चेक करते हैं, पेशेंट का ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करते हैं। इसमें हम 3 चीज़ें चेक करते हैं, एलडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल, सेकंड है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि एलडीएल दैट इज बैड कोलेस्ट्रॉल, एंड थर्ड वन इज ट्राइग्लिसराइड। तो ये तीनों चीज़ें हम चेक करते हैं पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल या लिपिड प्रोफाइल में कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल पेशेंट की बॉडी में बढ़ा हुआ है और कौन सा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल लेवल में है और कौन सा कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जैसे कि अभी मैंने ईसीजी में बताया, ईसीजी में इस जो मैक्सिमम जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो कहाँ से परफॉर्म होती है, मायोकार्डियम लेयर से। वहीं पे जितने भी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं सारे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इस डिसीज में क्या हो रहा है, मायोकार्डियम में ही इस्चीमिया हो रहा है, यानी कि वहीं पे जो सेल्स है मायोकार्डियम में उनको ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है और डेथ हो रही है उनकी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ईसीजी जब भी हम पेशेंट का लेंगे तो हमको जो ईसीजी के ग्राफ्स हैं वो क्या मिलेंगे, इर्रेगुलर मिलेंगे एंड एबनॉर्मल मिलेंगे। और मेनली उसमें जो हमको एक चीज़ मिलेगी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ एलिवेशन ऑफ एसटी सेगमेंट। जो एक एसटी सेगमेंट होता है, इस एक सिंगल हम ईसीजी का अगर ग्राफ देखते हैं तो उसमें PQRST ये एक ग्राफ होता है, तो उसमें एस और टी वाला जो पार्ट है वो हमको एलिवेटेड यानी कि उठा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे इमेजेस अलाउ द डॉक्टर्स टू टेक द साइज ऑफ द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स एंड टू लुक फॉर फ्लूइड इनटू द लंग्स। चेस्ट एक्सरे करने से हमको ये पता चल सकता है कि पेशेंट को लंग्स में कोई प्रॉब्लम है या फिर हार्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स है, ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेशन। यहाँ पे एक नॉर्मल ईसीजी का जो ग्राफ होता है जिसमें होता है PQRS एंड T, तो ये एस और टी का जो सेगमेंट आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा एलिवेटेड रहता है। अनदर इन्वेस्टिगेशन दैट इज इकोकार्डियोग्राम। इट प्रोवाइड द ग्राफ अबाउट द साउंड वेव्स। ये क्या करता है, साउंड वेव्स प्रोवाइड करता है, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, साउंड वेव्स डायरेक्टेड टू द हार्ट। नेक्स्ट वन इज कोरोनरी कैथेटराइजेशन एंड एंजियोग्राम। ये मैंने पहले भी बताया आपको। इसमें क्या करते हैं, हम एक डाई इंजेक्ट करते हैं आर्टरीज में और एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं आर्टरी में और चेक करते हैं कि वेदर द आर्टरी आर ब्लॉक्ड और नॉट, आर्टरी में ब्लॉकेज है या नहीं है, और ब्लॉकेज है तो ब्लॉक या क्लॉट का साइज कितना बड़ा है। एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट और ट्रेडमिल टेस्ट, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सेम थिंग है, कार्डियक सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले वाली स्लाइड में बता चुकी हूँ, तो वो भी सेम ऐसे ही रहेंगी। इसमें भी हम क्या करते हैं, हार्ट को में किसी भी तरह का डिफेक्ट है इसको डायग्नोस करते हैं, किसी भी तरह का हार्ट की स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं। Next one is medication. So first management in medical management, first drug is thrombolytic. Thrombolytic, these drug also called the clot buster. These helps to dissolve a blood clot that blocking the blood flow to the heart. जो थ्रोम्बोलाइटिक्स एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जो ब्लड का बैक फ्लो ब्लड का जो फ्लो ब्लॉक हो गया है किसकी वजह से, क्लॉट की वजह से या थ्रोम्बस की वजह से, तो उस थ्रोम्बस और क्लॉट को ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, हटाते हैं, तो जिससे कि ब्लड का फ्लो अच्छे तरीके से हो सके। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकाइनेस। Another medication that is blood thinning medications like हिपैरिन। हिपैरिन हम क्यों देते हैं, ब्लड को वो थिन करता है। अगर क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से ब्लड क्या हो गया है, कोगुलेट हो गया है, गाढ़ा हो गया है, तो हम ब्लड थिनिंग मेडिकेशन देते हैं ताकि ब्लड का फ्लो स्मूथली और अच्छे से हो। बीटा ब्लॉकर, दिस मेडिकेशन हेल्प्स टू रिलैक्स द
हार्ट मसल स्लो द हार्ट बीट एंड डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। अगर पेशेंट ऑलरेडी हाइपरटेंशन वाला है तो सबसे फर्स्ट थिंग हमको क्या करना है कि पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है तो सबसे पहले हमको उसको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस देने होंगे। तो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस में एक मेडिकेशन आता है बीटा ब्लॉकर्स, फॉर एग्जांपल एटेनोलॉल, मेटोप्रोलोल। ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करते हैं और हार्ट को रिलैक्स करते हैं, हार्ट के जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टेटिन। statins, these drug helps to control the blood cholesterol। statins क्या करते हैं, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, इनका एक और नाम भी है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारी बॉडी में जितना कम होगा हार्ट डिसीज होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। सो एग्जाम्पल ऑफ स्टेटिन इज एटोरवास्टेटिन, लोवास्टेटिन। Next one is blood thinner like aspirin. It is also used to break up the blood clots and improve the blood flow. Antiplatelet drug used to prevent the new clot formation. ये new clot form होने से prevent करते हैं, that is called antiplatelet like clopidogrel. Nitroglycerin, it is used to treat the chest pain. ACE inhibitor, it can also be used to lower the blood pressure and decrease the stress on the heart। ठीक है, तो ये जितने भी ड्रग्स हैं, एसी इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर्स, ये सारे क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन है जिनको कि हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज सर्जरी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्जरी। फर्स्ट वन इज कोरोनरी एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग एंड कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। बोथ सर्जरी के बारे, दोनों सर्जरी के बारे में आप लोग जानते हैं, मैं प्रीवियस क्लासेस में भी बता चुकी हूँ दोनों सर्जरी। मैं आपको एक इसका डायग्राम दिखा रही हूँ। सो फर्स्ट है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये सपोज फर्स्ट वाली जो आर्टरी है, यहाँ पे येलो कलर का यहाँ पे डिपोजिशन हुआ है, यानी कि एथ्रोस्क्लेरोसिस हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या डाला, एक कैथेटर इंसर्ट किया, और साथ ही साथ कैथेटर के साथ में जो ब्लैक कलर की लाइनिंग दिख रही है दैट इज स्टेंट। अब स्टेंट के साथ साथ हमने एक बैलून यानी कि कैथेटर जैसा इंसर्ट किया है, और नेक्स्ट वाले में देखेंगे कि हमने बैलून को इन्फ्लेट कर दिया है। इन्फ्लेट कर दिया मतलब हमने उसको फुला दिया। फुलाने की वजह से क्या है, जो आसपास के जो ऊपर और नीचे दोनों साइड की जो वॉल्स है उसमें जहाँ पे प्लेग का फॉर्मेशन हुआ है वो क्या करता है, उसके ऊपर प्रेशर डालता है, जो इन्फ्लेटेड जो बैलून है, इसकी वजह से क्लॉट हो जाता है, रिजॉल्व, और ब्लड का फ्लो आसानी से होने लगता है। तो दिस इज कोरोनरी एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग। नेक्स्ट वन इज कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी में क्या होता है कि कोई भी एक कोरोनरी आर्टरी या किसी भी एक कोरोनरी आर्टरी की कोई ब्रांच अगर वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है या वो आर्टरी रप्चर हो गई है, तो हम उसको किसी दूसरी कोरोनरी आर्टरी से जिसमें ब्लड का फ्लो अच्छे से हो रहा है उसके साथ हम उसको बाईपास मतलब हम उसको कनेक्ट कर देते हैं, ताकि ब्लड का फ्लो जिस पार्ट में नहीं हो पा रहा था वहाँ पे भी अच्छे तरीके से हो सके। तो जैसे फर्स्ट वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक जगह पे यहाँ पे जहाँ पे एरो बना हुआ है वहाँ पे क्या है, आर्टरीज क्या हो गई है, क्लॉग्ड हो गई हैं, और साथ ही साथ रप्चर या डैमेज हो गई हैं। तो नेक्स्ट वाले जो लिखा हुआ है आफ्टर में आप लोग देखेंगे वहाँ से एक एरोटा से एरोटिक जो असेंडिंग एरोटा है वहाँ से लेकर यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक बाईपास बना दिया गया है। सो दिस इज कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। इसमें हम क्या करते हैं, जो कोरोनरी आर्टरी की कोई भी एक ब्रांच या स्मॉल जो पार्ट है अगर वो ब्लॉक या रप्चर या डैमेज हो जाता है तो हम उसको दूसरी कोरोनरी आर्टरी जो कि सही है, जिसमें कि ब्लड का फ्लो अच्छे से हो रहा है, उसके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन। सो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज एबनॉर्मल हार्ट रिदम। So abnormal heart rhythm, that is also called arrhythmia. It is resulting in abnormal heart rhythm because of मायोकार्डियल इस्चीमिया। मायोकार्डियम में क्या हो रहा है, सेल डेथ हो रहे हैं, नेक्रोसिस हो रहे हैं, तो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो इरेगुलर और डिस्टर्ब हो जाती है, दैट कॉल्स इरेगुलर हार्ट रिदम। हार्ट फेलियर, पेशेंट क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है अगर कंटिन्यू ये चीज़ होने लगेगी, पेशेंट को कंटिन्यू अगर मायोकार्डियल इस्चीमिया हो रहा है और हमने उसको ट्रीट नहीं किया, दैट फर्दर कॉज टू हार्ट फेलियर और हार्ट ब्लॉक, सडन कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक।
नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट। इन नर्सिंग मैनेजमेंट फर्स्ट इज नर्सिंग डायग्नोसिस। क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस हम पेशेंट के लिए बना सकते हैं? फर्स्ट वन इज एक्यूट पेन रिलेटेड टू टिश्यू इस्चीमिया एज एविडेंस बाय द पेशेंट रिपोर्टिंग ऑफ चेस्ट कॉमा फेशियल ग्राइमेसिंग। नेक्स्ट, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू चेंजेस इन मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, impaired gas exchange related to interruption of blood flow to the pulmonary alveoli. Fourth one is imbalanced nutrition less than the body requirement related to inadequate intake, that is anorexia. Fifth one is activity intolerance related to imbalance between myocardial oxygen supply and needs. Sixth one is anxiety related to hospitalization and fear of death. And seven, nursing diagnosis is risk for ineffective tissue perfusion related to reduction of the blood flow. So now come to the nursing management. क्या क्या nursing management हम कर सकते हैं? So first one is balancing of myocardial oxygen supply as per demand. सेकेंड, मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड एज पर ऑर्डर। जैसे हमको मेडिकेशन बताया गया है कि पेशेंट को कौन सा पर्टिकुलर मेडिसिन देना है, उसके अकॉर्डिंग हमको पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द कार्डियक फंक्शन। कंटिन्यूअस हमको कार्डियक फंक्शन मॉनिटर करना है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर लेना है, चेक करना है, पेशेंट का हार्ट बीट चेक करना है, पल्स लेना है। कंटिन्यूअस ईसीजी मॉनिटरिंग, हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग। हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग मीन्स मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड फ्लो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी हमको मॉनिटर करना है। प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देना है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है। मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग इनपुट एंड आउटपुट, पेशेंट का इनटेक कितना है और आउटपुट कितना है, ये सारी चीज़ें हमको रिकॉर्ड करनी है। बेड रेस्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज एंड रिड्यूस द स्ट्रेस फैक्टर, जिस वजह से पेशेंट को स्ट्रेस हो रहा है उस चीज़ों को हमको, सारी चीज़ों को पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलना है। प्रोवाइड द हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग द सेल्फ केयर। असेस द पेशेंट लेवल ऑफ पेन, लोकेशन एंड ड्यूरेशन, पेशेंट को कितना पेन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, उसका ड्यूरेशन कितना, ये सारी चीज़ें हमको नोट डाउन करनी है। एंड प्रिवेंशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। अनदर नर्सिंग इंटरवेंशन, फर्स्ट वन इज फ्लूइड स्टेटस। पेशेंट का फ्लूइड स्टेटस देखना है, पेशेंट को कहीं हमने ज़्यादा फ्लूइड एडमिनिस्टर तो नहीं कर दिया है, फ्लूइड ओवरलोड चेक करना है, इनटेक एंड आउटपुट चेक करना है। इमोशनल सपोर्ट देना है पेशेंट को, और साथ ही साथ उसको जो भी आसपास का सिचुएशन है उससे ओरिएंट करवाना है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर, टेक्नोलॉजी एंड रिलीव द एंजाइटी, जो भी प्रोसीजर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो पेशेंट को सबसे पहले हमको एक्सप्लेन करना है और उसकी एंजाइटी को रिलीव करना है। डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन यूनिट गाइडलाइंस, पेशेंट से रिलेटेड जितने भी गाइडलाइंस दिए हुए हैं, जो भी हैं, सबको हमको फॉलो करना है। पेशेंट एजुकेशन एंड प्रिवेंशन, पेशेंट का नीड हमको चेक करना है, क्या नीड्स है पेशेंट को। सेकंड, रिफरल देखना है, सपोर्ट सिस्टम क्या क्या है, पेशेंट अकेला है, उसकी फैमिली में कौन कौन है उसको सपोर्ट करने वाला, तो हमको सपोर्ट सिस्टम देखना है। पेशेंट को कार्डियक रिहैबिलिटेशन की नीड है, कहाँ भेजना है, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट, पेशेंट को आगे चल के क्या रिस्क हो सकता है और उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। पेशेंट को साइकोलॉजी कैसे स्टेबल करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव थेरेपी, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो हम अल्टरनेटिव मेडिसिन के अलावा भी बहुत सारी थेरेपी है जिससे हम उसको, उसकी एंजाइटी को रिलीव कर सकते हैं, उसके टेंशन को रिलीव कर सकते हैं। पेन को रिड्यूस करने के लिए हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, हैंडल द पेशेंट केयरफुली वाइल प्रोवाइडिंग द इनिशियल केयर, स्टार्टिंग आईवी इन्फ्यूजन, ऑब्टेनिंग बेसलाइन वाइटल साइन, अटैचिंग इलेक्ट्रोड फॉर कंटिन्यूअस ईसीजी मॉनिटरिंग। ये सारी चीज़ें करते समय हमको सब पेशेंट को बिल्कुल केयरफुली हैंडल करना है ताकि पेशेंट एंजियस ना हो और उसको कोई किसी भी तरह का फियर ना हो। नेक्स्ट, मेंटेन ऑक्सीजन सैचुरेशन, हमको कंटिन्यूअसली मेंटेन करना है ग्रेटर देन द 92%। क्यों मेंटेन करना है ऑक्सीजन का सैचुरेशन हमारी बॉडी में, क्योंकि ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो मायोकार्डियम लेयर में कम हो गई है। मायोकार्डियम लेयर में कम हो गई है मतलब ब्लड के थ्रू मायोकार्डियम को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो ये हमको श्योर होना है कि पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल सफिशिएंट होना चाहिए, जितना एक नॉर्मल पर्सन को चाहिए। Administer oxygen by nasal cannula if prescribed. Encourage the patient to take the deep breath, may decrease the incidence of dysrhythmia by allowing the heart to be less ischemic and
लेस इरिटेबल में रिड्यूस द इन्फेक्ट साइट, डिक्रीज एंजाइटी, रिजॉल्व द चेस्ट पेन। पेशेंट को बोलना है कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, उससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन का लेवल है, अगर मायोकार्डियम में इस्चीमिया हो रहा है, सेल्स कंटिन्यूली डेथ हो रहे हैं, तो उसका जो एक प्रोग्रेस का लेवल है वो थोड़ा कम होगा। सो थैंक यू।